Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. First pause this video, try this set yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading this particular set and then we'll solve this. So there are 6 countries, China, India, Indonesia, Japan, Pakistan and South Korea. They participated in a sports tournament which comprised 10 events. For each event, the countries that stood first, second and third were awarded a gold medal, a silver medal and a bronze medal respectively. Right, so total 10 events है, हर एक इवेंट में तीनों आपके अवार्ड्स मिलेंगे, मेडल्स मिलेंगे, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज. सो देयर विल बी अ टोटल ऑफ व्हाट से 10 gold medals, 10 silver medals and 10 bronze medals. Right. The final standings of the countries in the tournament were calculated as follows. A country with a higher number of gold medals was placed higher. जिसका gold ज़्यादा होगा, they will be placed higher. Total number of medals से मतलब नहीं है, gold जिसका ज़्यादा होगा, that country will be ranked higher. If 2 or more countries have the same number of golds, so yes, what if the number of golds is same? In that particular case, the second point comes in handy. If 2 or more countries have the same number of gold medals, the country with a higher number of silver medals was placed higher. तो अगर gold same हो गया तो silver को priority देके जिसका silver ज़्यादा होगा, that country will be ranked higher. Then obviously there will be a third case. If 2 or more countries have the same number of gold medals and the same number of silver medals also, then the country with a higher number of bronze medals was placed higher. Right, तो प्रायोरिटी ऑर्डर गोल्ड, सिल्वर अप टू ब्रॉन्ज आएगा. No two countries had the same combination of the number of gold medals, silver medals and bronze medals. No two countries have the same combination of number of gold medals, silver and bronze. मतलब जैसे अगर कहीं पे किसी कंट्री में A B C आया तो किसी और कंट्री में फिर A B C नहीं आना चाहिए. That is what is mentioned in this fourth statement. Right, ये तो आपकी बेसिक कुछ conditions हो गई. How will they be ranked? Now we have some additional information. Let's start reading them and get the maximum gist out of this. So the following information is known about the final standings and the medal tally of the 6 countries. So let's start with the first point. South Korea. Acha, by the way, so I have made this table. Obviously, table is very simple. I'll have to write gold, silver and bronze medals tally for each of these 6 countries. So table to simple hai. This should be straightforward. Let's jump to this statement wala part. South Korea was the only country, that only word has to be kept in focus. South Korea was the only country to win an equal number of gold, silver and bronze medals. So South Korea का gold, silver and bronze, these 3 values have to be equal. Let's say अगर ये x है तो ये भी x है और ये भी क्या आएगा, x आएगा. So I'll remember that by this x, right? Whereas Pakistan was the only country to win exactly 1 gold medal. So Pakistan was the only country to win exactly one gold medal. तो पाकिस्तान में गोल्ड में 1 आएगा and there is no other country which has what 1 in this gold. Right, this first statement is actually done. Right, let's move on to the second statement. China was not last in the final standings. So China के लिए क्या बोला है, this country is not last in the final standings. And the number of gold medals won by China was the same as the number of bronze medals won by India. So gold by China, let's say if this is A, this is equal to number of bronze medals won by India. So this has to be also A, right? I hope this is clear. So this is A and this is also A. Okay, so have we completely used the statement? Yes, I have written this out, so I don't need the second statement now. Third point. Every country won at least 1 silver medal. So silver में every country has to get at least 1. So all these values have to be greater than equal to 1. At least 1 silver medal and no country won more than 3 gold medals. So gold पे upper limit क्या है? That has to be maximum of 3. So this has to be less than equal to 3. Each of these values in this particular gold वाला column. Right? So this statement is also done for us. Fourth point, the country that won the maximum number of medals was not in the top 3 in the final standing. बहुत बुरा हुआ, but anyways, this is what the fact is. The country that won the maximum number of total number of medals, won the maximum total number of medals, right? Addition, gold plus silver plus bronze. Addition जिसका maximum है, ironically what happened, this country was not in the top 3 of the final standing. अब इसको मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी represent नहीं कर पा रहा हूँ. So I'll keep this statement on hold. अभी इसको हम cross out तो बिल्कुल नहीं करने वाले, ठीक है?
Now, fifth point, the country that finished in the last place in the final standing won 4 bronze medals. So जो भी एक्चुअली में ये लास्ट वाली जो कंट्री होगी उसके ब्रॉन्ज में कितना आने वाला है, 4 आने वाला है. देयर इज अ कंट्री जो कि लास्ट है और उसका ब्रॉन्ज में कितना वैल्यू गया, 4 गया. बाकी दोनों को ऑब्वियसली भी आपको नहीं पता है, राइट. सो बिकॉज आई हैव रिटन दिस स्टेटमेंट तो आई कैन क्रॉस दिस आउट. आई हैव यूज दिस. सिक्स्थ पॉइंट, इंडिया वन द सेम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स एज जापान. इंडिया का गोल्ड में सेम नंबर ऑफ मेडल्स एज जापान. सो इफ दिस इज बी, लेट्स से जापान का भी गोल्ड में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा. बट वॉज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो जापान इन द फाइनल स्टैंडिंग. सो इंडिया हैज टू बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो जापान. तो यही जो कंडीशंस थे ना, ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड देन फॉलोड बाय सिल्वर फॉलोड बाय ब्रॉन्ज, इसी के बेस पे जो आपकी रैंकिंग है उसमें जापान के जस्ट नीचे क्या आना चाहिए, इंडिया आना चाहिए. सो बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो डन एंड इंडिया जापान का गोल्ड इज ऑल्सो डन, आई कैन सेफली रिमूव दिस स्टेटमेंट ऑल्सो. ओके, द कंट्री दैट वॉज इन द फर्स्ट प्लेस इन द फाइनल स्टैंडिंग वन एन इक्वल नंबर ऑफ ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडल्स. अगेन मैं बोल नहीं सकता इसको, द कंट्री दैट वॉज इन द फर्स्ट प्लेस, तो उसका इक्वल नंबर आना चाहिए सिल्वर एंड ब्रॉन्ज में. Right now I cannot specifically say which of these is that country. So where do I begin off with? बहुत सारे statement आपने use कर लिए हैं but they have not given me unique values. So this is a lot of this is going to involve a lot of deductions. So I would say this is a very difficult set. On the front I noticed कि बहुत सारे आपको unique values वगैरह मिले नहीं हैं. So yes, this ideally should not be the first set in an exam, but yes, we have to go ahead and learn these type of sets, कैसे इसको deal करना है, right? Very important. Okay. Now where do I begin with? तो मेरे पास ना एक ये वैल्यू है जो कि लास्ट आएगा उसका ब्रॉन्ज में कितना जाएगा, 4 जाएगा. तो लेट्स सी हु कैन एक्चुअली बी दैट लास्ट वाला. तो जैसे चाइना का अगर नोटिस करो, चाइना का लास्ट तो नहीं हो सकती वो कंट्री, ऑलरेडी लिख रखा है. Can India be that person? India be that country, sorry, which is actually standing in the last position पे आया मिडिल टैली में. तो इंडिया का अगर लास्ट होना है तो दिस A will have to be what, 4. लास्ट वाले में 4 आता है, बट अगर ये A 4 है तो गोल्ड में यहाँ पे भी 4 आएगा. बट इस कॉलम में नोटिस करो मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है आपकी, 3 जा सकती है. तो चाइना कैन नॉट बी दैट कंट्री, इंडिया कैन नॉट बी दैट कंट्री. इंडोनेशिया डेफिनेटली हो सकता है, अभी कुछ कंडीशन वगैरह लगा नहीं है. जापान नहीं हो सकता, मुझे पता है क्यों जापान नहीं हो सकता, बिकॉज मिडिल टैली में जापान के नीचे ऑलरेडी इंडिया आ रहा है. तो इंडिया ही जब लास्ट नहीं है तो जापान कैसे आ सकता है, राइट? जापान कैन नॉट बी द लास्ट कंट्री. तो इंडिया आपका नहीं है तो जापान भी ऑब्वियसली नहीं है. पाकिस्तान हो सकता है, येस, कुड बी, राइट नाउ बोल सकते हैं, फिलहाल चेक करें पड़ेगा. पाकिस्तान अभी फिलहाल हो सकता है, इसका 1 एंड फॉलोड बाई दिस 4. ओके, व्हाट अबाउट साउथ कोरिया? साउथ कोरिया को अगर मैं चेक करूं, साउथ कोरिया में अगर इसको लास्ट होना है तो यहाँ पे x के लिए 4 आ जाएगी. बट अगेन वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा. x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. बट ये तो अलाउड ही नहीं है आपका. अच्छा, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस इंडोनेशिया वाला पार्ट एंड पाकिस्तान वाला पार्ट. अब इसमें हम और थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि क्या आ सकता है. इंडोनेशिया में तो अभी बिल्कुल तीनों ही वैल्यू मिसिंग है, तो उससे बेटर हम चेक करते हैं पहले पाकिस्तान को, राइट? दैट इज द रीजन आई विल चेक पाकिस्तान फर्स्ट. एटलीस्ट एक नंबर तो आपको 1 पता है. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, लेट्स से यहाँ तक तो यूनिक है ना, लेट्स यूज कलर्स, राइट? तो पाकिस्तान का अगर वो कंट्री है जो कि लास्ट आने वाली है तो इसका ब्रॉन्ज में ऑब्वियसली ये 4 आया. नाउ अगर पाकिस्तान का ये आपका 4 आया, ठीक है, और पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसका गोल्ड में क्या आ रहा है, 1, और किसी का गोल्ड में 1 नहीं आएगा, एंड पाकिस्तान को लीस्ट होना है, मतलब सबसे नीचे आना है. कैन आई सेफली से कि बाकी कंट्रीज का गोल्ड में एटलीस्ट 2 आना चाहिए? सोच के देखो, 1 के नीचे जा नहीं सकता, बिकॉज फिर पाकिस्तान लीस्ट तो नहीं हुई. फिर 0 वाला जिसका होगा वो लीस्ट होगी, तो पाकिस्तान तो फिर आपका लीस्ट वाला नहीं हुआ. हमने तो ये अजम्पशन लिया है इस केस में. तो 0 नहीं हो सकता किसी का भी, 1 नहीं हो सकता बिकॉज उसने मना कर रखा है. पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसका गोल्ड में क्या है, 1. नो अदर कंट्री हैज अ 1 इन गोल्ड. सो ये 1 भी आपका रिपीट नहीं हो सकता. दैट मीन्स बाकी सारी जितनी भी वैल्यूज आपकी रिमेनिंग है इस पर्टिकुलर कॉलम में, दे विल हैव टू बी एटलीस्ट 2. प्रॉब्लम ये है 6 कंट्रीज है,
टोटल एडिशन आपको पता है, गोल्ड में टोटल कितना आता है 10, सिल्वर में 10 और ब्रॉन्ज में 10, टोटल 10 है। पाकिस्तान का उसमें 1 आया। अगर आप बाकी सारी कंट्रीज को मिनिमम 2 2 2 2 2 दोगे तो 2 × 5 10 ऑलरेडी बन जाएगा ना, और उसके बाद ये 1 ऐड करके क्या बना देगा उसको 11, बिकॉज आप लीस्ट 2 कम से कम आपको रखना ही पड़ेगा, आप 1 और 0 नहीं रख सकते। दैट मीन्स फिर ये तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज कर रहा है, एंड हेंस आई कैन गो अहेड एंड कंक्लूड कि पाकिस्तान इज नॉट दैट कंट्री जिसका लीस्ट आया है, इट इज गोइंग टू बी इंडोनेशिया, राइट। इंडोनेशिया का आपका लीस्ट आएगा एंड दिस वुड बी व्हाट 4, राइट। नाउ कैन आई से समथिंग फॉर इंडोनेशियाज गोल्ड वाला पार्ट? ओके, बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया को सबसे लीस्ट आना है, गोल्ड के बेसिस पे सबसे पहले डिसाइड होता है प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो अगर आप नोटिस करो पाकिस्तान का 1 है, तो इंडोनेशिया का आपका 1 से ऊपर तो नहीं जा सकता, बिकॉज फिर वो लीस्ट नहीं हो पाएगा, सबसे नीचे आना भी तो है। 1 भी नहीं हो सकता बिकॉज 1 कभी अब इस कॉलम में नहीं आएगा, 1 एक ही बार आना चाहिए था यूनिकली फॉर पाकिस्तान। दैट मीन्स ये 1 से नीचे ही होगा एंड दिस वुड इन टर्न बी 0। तो ये आपका क्या हो गया, आपका 0 बन गया, राइट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अब हम क्या सोचना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस x के पॉसिबल वैल्यूज अगर आप थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करो तो x के पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकते हैं। देखो इस केस में आपका जो x है मैक्स टू मैक्स 3 हो सकता है, राइट। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं इसको चेक करना। देखो ये x आपका जो हो सकता है वो 3 हो सकता है, x आपका 2 भी हो सकता है, x आपका 1 नहीं हो सकता, ऑल्सो x आपका 0 नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे भी तो है, तो यहाँ से तो कंडीशन एटलीस्ट 1 की आ रही है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज ये जो x है ना, इसके आपकी 2 पॉसिबल वैल्यूज है, आइदर इट कैन बी 2 और इट कैन बी 3। तो हमें एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा, दोनों केसेस को लेके चेक करना पड़ेगा। सो गो अहेड एंड चेक दिस। सो लेट्स स्टार्ट चेकिंग दिस। सो सबसे पहले सपोज x की वैल्यू क्या है आपकी 3 है। सपोज मैंने डाला ये 3 है, ये 3 हो गया, तो ये भी क्या हो गया आपका 3। नाउ x की वैल्यू 3 हो गई। अब इस कॉलम में थोड़ा नोटिस करें, 3 + 1 + 0 4 ऑलरेडी है, 4 है। इसके बाद आपका a + 2b बचता है, तो a + 2b, तो ये 4 हो गया था, तो a + 2b की वैल्यू क्या आएगी आपकी 6 आएगी। अब a की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, बिकॉज ये 2b तो आपका जैसे हमेशा इवन बनेगा, a की क्या वैल्यूज हो सकती हैं। इसको इवन बनना है तो देखो इसको भी इवन ही बनना पड़ेगा। 3 एट मैक्स हो सकता था, बट यहाँ 3 नहीं हो सकता ना, बिकॉज अगर 3 रखा तो 2b कैन नॉट बी इक्वल टू 3, b तो फ्रैक्शन आ नहीं सकता, तो 3 नहीं हो सकता। तो अब यहाँ से क्या पॉसिबल वैल्यूज निकल के आने स्टार्ट करेंगे। पहला पॉसिबिलिटी, अगर मेरा क्या बोला मैंने, a इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, राइट, a इक्वल टू 2। अच्छा, और क्या वैल्यू हो सकती है वैसे अगर सोचे तो, क्या मेरा a इक्वल टू 1 हो सकता है? नहीं, a इक्वल टू 1 वैसे भी आपका अलाउड नहीं है। तो पहले चेक करते हैं a इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा। तो अगर a इक्वल टू 2 है, राइट, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और अगर आप नोटिस करो a 2 हुआ तो 2b इक्वल टू 4, उससे b भी 2 हो जाएगा, और आपका यहाँ वाला b भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इन दैट केस अगर आप नोटिस करो तो हाईएस्ट फिर गोल्ड आपका किसका हो जाएगा, साउथ कोरिया का हो जाएगा। तो साउथ कोरिया विल बी द लाइक टॉप वाली कंट्री, राइट। रैंकिंग इसकी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। नाउ रैंकिंग आपकी 1 आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ ना एक कंडीशन दिया था, द कंट्री दैट वन द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वॉज नॉट इन द टॉप 3 इन द फाइनल स्टैंडिंग्स। नाउ पॉइंट क्या है ना, मुझे यहाँ पे साउथ कोरिया में क्या दिख रहा है 333 से इसके टोटल नंबर ऑफ मेडल्स क्या है 9 है करंटली। इसके टोटल नंबर ऑफ मेडल्स क्या दिख रहे हैं मेरे को 9 दिख रहे हैं। 9 इज अ वेरी बिग नंबर। अभी करंटली अगर आप बाकी को नोटिस करो ना तो 9 के कहीं भी क्लोज भी नहीं स्टैंड करते। तो मुझे ये चेक करना चाहिए, क्या साउथ कोरिया तो हम ये बोल रहे हैं कि टॉप पे है, क्या इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स भी है? लेट्स गो एंड वेरीफाई दिस। जैसे कि ये 9 है, क्या कोई 9 से ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता, इसको चेक करते हैं, ठीक है। 9 से अगर किसी को ऊपर जाना है तो क्या जा सकता है? तो अगर मैं चेक करूं, जैसे इस पर्टिकुलर ब्रॉन्ज वाले वैल्यू में अगर आप नोटिस करो तो टोटल आपका 10 होना था, 4 + 5 ऑलरेडी, ये 1 ही मैक्सिमम आ सकता है आपका, राइट, ये आपका 1 आ सकता है। अब अगर ये 1 आया तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और 9 को उसको क्रॉस कराना है तो 10 पे लेके जाना पड़ेगा, 10 पे इसको लेके जाना पड़ेगा,
तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो क्या ये 7 हो सकता है? देखो ये 7 नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें हर एक वैल्यू को आपको कम से कम 1 1 1 देना है। अगर इधर 7 रख दोगे तो ये 3 है, तो बाकी सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे, कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है। अगेन सेम लॉजिक से 2 + 2 इस वाले इंडिया को अगर नोटिस करें, क्या ये हाईएस्ट हो सकता है? देखो इंडिया वैसे भी हाईएस्ट आपका नंबर गोल्स पे देखना है ना, हो सकता है, चेक करते हैं। इंडिया के लिए 2 + 2 4 है, इसको 6 और देना पड़ेगा इसमें। क्या ये 6 हो सकता है? 6 + 3 9 हो जाएगा, बट किसी एक ही जगह 1 दे पाएंगे तो नहीं हो सकता। इंडोनेशिया के लिए भी यहाँ पे 4 है, इसको 6 देना पड़ेगा, अगेन 6 नहीं दे सकते, एज वी अंडरस्टूड फ्रॉम इंडियाज वाला केस ऑल्सो। जापान के लिए भी नोटिस करो, यहाँ पे आप वही सेम काम, जो चाइना को आप मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, तो जापान में भी नंबर तो वही है, तो यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान में और कम है, तो ये तो और भी नहीं पहुँचने वाला है। तो आई कैन सेफली से कि अगर मैंने यहाँ 3 से स्टार्ट करा, ये सब 2 फिट होगा, ठीक है। अगर 2 यहाँ पे रखा, 3 के साथ अगर 2 रखा तो यहाँ पे दैट वाज ऑब्वियसली वन पॉसिबिलिटी। अगर 2 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया विल बी द टॉप मोस्ट कंट्री, ऑल्सो इट विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन दैट केस, बट ये फिर अगेंस्ट चला जाएगा, बिकॉज इसने ये बोला है द कंट्री दैट वन द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वॉज नॉट इन द टॉप 3 इन द फाइनल स्टैंडिंग्स। तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्टरी, क्योंकि ये टॉप भी ये कर रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स भी है, दिस इज गोइंग अगेंस्ट द कंडीशन। दैट मीन्स अभी ये जो हमने यहाँ पे चाइना का 2 डाला था ना, फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। दिस इज अ लॉट ऑफ केस वर्क, इसीलिए थोड़ा ये डिफिकल्ट साइड हुआ। सो आई सेफली रिमूव दिस 2 वाला पॉसिबिलिटी। तो ये 2 सब हट जाएगा यहाँ से, ये भी 2 हट जाएगा, और यहाँ पे ये a = 2 वाला केस हम हटा देते हैं। नाउ जो थर्ड पॉसिबिलिटी बच जाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब आपने बोला कि a 2 पे सेटिस्फाई तो नहीं हुआ, द फाइनल पॉसिबिलिटी यू कुड से कि अगर क्या हो जाए, a आपका क्या हो जाए? 0 हो जाए। इस पे चेक करते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। नाउ अगर a 0 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स फिर आपका 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी पूरी 6। दैट मीन्स b कितना हो जाएगा? 3। तो ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा। ना प्रॉब्लम क्या है ना, जो पीछे एक प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही थी ना, पीछे एक प्रॉब्लम थी, वो अभी भी परसिस्ट करेगी। क्या? ये साउथ कोरिया का नोटिस करो, यहाँ पे 3 + 3 + 3 9 है, इसका ही हाईएस्ट अभी भी होने वाला है, बिकॉज आप कभी भी किसी भी को आप चेक करके देख सकते हो, आप किसी को भी 9 से ज़्यादा लेके जा ही नहीं पाओगे। तो साउथ कोरिया विल बी द हाईएस्ट मेडल टैली वाला कंट्री। बट फिर से अगर आप नोटिस करो तो इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 3 है, तो डेफिनेटली साउथ कोरिया विल बी इन द टॉप 3। अगेन वो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज करके दे रहा है। दैट मीन्स नाउ आई कैन सेफली गो एंड से कि साउथ कोरिया का ये जो x था ना, ये फिर 3 वाला आपका पॉसिबिलिटी नहीं लेगा। सो आई हैव टू फिक्स दिस नाउ। सो ये हटा देते हैं, ये सारे जो हमने नंबर्स लिखे थे, ये आपका पूरा का पूरा x की जगह क्या चला जाएगा? फिर अब आपका ये x की जगह, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर नाउ, x की जगह चला क्या जाएगा? आपका ये 2 चला जाएगा। सो दिस विल बी 2, दिस विल बी 2 एंड दिस विल ऑल्सो बी 2, राइट। सो ये पार्ट आपका फिक्स हो गया। दैट मीन्स अब हम ये इक्वेशन हटा के बोल सकते हैं कि अब आपका 2 + 1 + 0 कितना हुआ है? 3 हुआ है। दैट मीन्स जो रिमेनिंग है a + 2b, इसकी वैल्यू मिला के आपकी कितनी आ गई? 7 आ गई, ठीक है। एंड नाउ a + 2b = 7 में अब आप नोटिस करो, जैसे ये तो हमेशा इवन बनेगा, तो अगर ये एडअप करके 7 बनाना है, इसको ऑड बनना पड़ेगा, तभी ऑड प्लस इवन से ऑड आएगा। तो अब a ऑड क्या रख सकते हो? मैक्सिमम लिमिट 3 है, 1 आप रख नहीं सकते बिकॉज पाकिस्तान का 1 यूनिक है गोल्ड में। दैट मीन्स फिर a की वैल्यू फिर फिक्स हो जाएगी आपकी, ये क्या आ जाएगा? आपका 3 ही रखना पड़ेगा आपको, और 2b = 4 बचेगा, मतलब b की वैल्यू क्या आएगी? आपकी 2 आएगी। तो नाउ वी कैन सिंपली रिप्लेस ऑल दीज वैल्यूज। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई, b की वैल्यू आपकी 2 आ गई, ऑल्सो दिस a इज 3, b की वैल्यू क्या आ गई? 2 एंड दिस इज ऑल्सो। ये सारी वैल्यूज अब आपकी फिगर आउट हो गई, राइट। सो मे बी आई कैन जस्ट क्लियर दिस अप लिटिल बिट फॉर सिंप्लिसिटी पर्पसेस। ये हटा देते हैं सब, बिकॉज दीज वैल्यूज आर नाउ फिक्स। जो भी बनना है इन्हीं से बनेगा। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट कम्स इन वेरी हैंडी, द कंट्री दैट वॉज इन द फर्स्ट प्लेस। तो अब अगर आप नोटिस करो मेडल टैली में, तो गोल्ड में चाइना का हाईएस्ट है, बिकॉज इट इज एक्चुअली गेटिंग द
3 गोल्ड्स, तो ये फर्स्ट है डेफिनेटली, राइट, ये फर्स्ट है। तो बिकॉज ये फर्स्ट है तो ये पॉइंट इसी के लिए रेलिवेंट हो गया। द कंट्री दैट वाज इन द फर्स्ट प्लेस इन द फाइनल स्टैंडिंग्स वन एन इक्वल नंबर ऑफ ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडल्स। तो ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा, राइट। अब ये देखो 0 तो हो नहीं सकता बिकॉज यहाँ कॉलम में अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 आना पड़ेगा। तो यहाँ का जो रिमेनिंग 1 था 4 + 3 + 2 9 के बाद जो रिमेनिंग 1 है फिर वो यहाँ पे फिट होगा। दिस विल बी 1, दिस विल ऑल्सो बी 1। ओके, नाउ वी कैन ऑल्सो गो अहेड, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है तो दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, यहाँ पे कुछ रिमेनिंग नहीं है। नाउ विल हैव टू फोकस ऑन दिस सिल्वर वाला पार्ट। नाउ सबसे पहले देखो जो फर्स्ट कंट्री है वो तो चाइना, आपको क्लियर कट पता चल गया है। इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया हैव द सेम नंबर ऑफ गोल्ड, कहीं ना कहीं इनके लिए सिल्वर ही रेलिवेंट है। नाउ एक पॉइंट दिया हुआ था यहाँ पे, जापान हैज़ टू बी जस्ट अबव इंडिया इन टर्म्स ऑफ मेडल टैली। तो इंडिया एंड जापान का ये जो सिल्वर, बिकॉज इनका गोल्ड सेम है तो ये सिल्वर वाला नंबर ही रेलिवेंट होने वाला, ठीक है, सिल्वर वाला नंबर ही रेलिवेंट होगा। सिल्वर वाला का नंबर सेम नहीं हो सकता, याद रखना। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों का सेम हुआ तो फिर बात चली जाएगी ब्रॉन्ज पे, लेकिन ब्रॉन्ज में इंडिया का 3 है, जापान का 0 है, तो फिर तो इंडिया हायर हो जाएगी। दैट मीन्स जापान का इंडिया से ज़्यादा होना चाहिए डेफिनेटली, तो यहीं पे डिसाइड हो जाना चाहिए। एंड बिकॉज जापान हैज़ टू बी जस्ट अबव इंडिया, राइट, तो इसका जो सिल्वर वाला होना चाहिए और इसका जो सिल्वर आना चाहिए, इनके बीच में एक ही का डिफरेंस आना चाहिए, बिकॉज साउथ कोरिया भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ जैसे अब क्या रख सकते हैं अगर हम वैल्यू सोचना स्टार्ट करें, जैसे ऑब्वियसली आप इंडिया में तो 4 डाल ही नहीं सकते, राइट, 4 से ऊपर तो वैसे भी नहीं जाएगा, बिकॉज अगर आप नोटिस करो 2 + 1 है 3 है, 4 वैल्यूज़ का एडिशन आपको 7 लाना बाकी है। तो अगर मैं मैक्सिमम सोचूं कि किसी पे क्या आ सकता है सच दैट बाकी भी सेटिस्फाई हो जाए, तो बाकी को तो आपको मिनिमम 1 ही देना था, तो मैक्सिमम कोई वैल्यू एक्चुअली 4 आ सकती थी। बट इंडिया में जैसे ये 4 आ नहीं सकता, बिकॉज 4 से ऊपर फिर जापान को नंबर आप दे नहीं पाओगे, एक ही मैक्सिमम 4 हो सकता है। क्या जापान का 4 हो सकता है? अगर देखो जापान का आपका 4 हुआ, राइट, जापान का आपका अगर 4 हुआ तो 4 अच्छा अगर आपने 4 दिया तो मतलब बाकी तीनों क्या आने पड़ेंगे? 1 आने पड़ेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। बाकी तीनों क्या आने पड़ेंगे? 1 आने पड़ेंगे। तो फिर इंडिया का क्या हो जाएगा आपका, जैसे अगर ये 4 लिखा मैंने तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, ये भी 1 लिखना पड़ेगा, ये भी 1 लिखना पड़ेगा। बट इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जापान के जस्ट नीचे इंडिया आना चाहिए था, लेकिन अगर मेडल टैली के हिसाब से देखोगे तो इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया में जापान को फॉलो करेगा फिर साउथ कोरिया, बिकॉज मेडल टैली के हिसाब से जापान हाईएस्ट रहेगा सिल्वर के कंपैरिजन में, सिल्वर के बेस पे। उससे नीचे फिर साउथ कोरिया होगा अबव इंडिया, बिकॉज साउथ कोरिया का 2 सिल्वर होगा और इंडिया का 1 सिल्वर है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जापान का जैसे यहाँ पे 4 भी नहीं हो सकता। अब यहाँ से वाली पॉसिबिलिटी हटा देते हैं पहले तो अब जापान का क्या क्या हो सकता है अगर हम सोचना स्टार्ट करें, या इंडिया का फॉर दैट मैटर, तो जापान का फिर 3 नहीं हो सकता, सॉरी 4 नहीं हो सकता, और मिनिमम तो 1 होना ही है। तो फिर पॉसिबल केसेस अब आपको चेक करने पड़ेंगे। जैसे इसके लिए डिफरेंट कलर यूज करते हैं। लेट से जापान का मैंने क्या बोला 3, राइट। अब लेट से अगर जापान का 3 है तो इंडिया का क्या हो सकता है, इसको चेक करते हैं। तो डेफिनेटली इंडिया का फिर 3 नहीं रहेगा, बिकॉज फिर ब्रॉन्ज पे बात चली जाएगी तो वो हार जाएगी, तो 3 नहीं हो सकता, राइट। अब 1 और 2 में 2 पॉसिबिलिटी बचे, इसको चेक कर लेते हैं। अगर जैसे मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे 2 है फॉर एग्जाम्पल, राइट, अगर यहाँ पे आपका 2 हुआ 3 के साथ 2, तो जापान का 3 रहेगा, इसका आपका 2 रहेगा, तो डेफिनेटली जापान के नीचे इंडिया आएगी। लेकिन इन दोनों का सेम हो जाएगा तो यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई होते हुए दिखेगा फिर आपको। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसमें अगर आपको सोचना पड़ेगा वो सब मेडल टैली वाला भी। तो अब अगर मैं करंटली जैसे नोटिस करूंगा तो यहाँ 3 4 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 टोटल हो जाएगा, इसका टोटल लेकिन फिर उस केस में कितना हो जाएगा 7, राइट। और ये 7 हो जाएगा, और अगर मैं पोजीशन वाइज देखूं तो ये 3rd पोजीशन पे हो जाएगा, बिकॉज फिर चाइना फर्स्ट रहेगा, जापान आपका 2nd पोजीशन पे रहेगा, एंड बिटवीन साउथ कोरिया एंड इंडिया ऑब्वियसली आपका इंडिया पहले आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस ब्रॉन्ज, तो इंडिया 3rd पोजीशन पे आ जाएगा। नाउ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इंडिया का ये जो 7 है दैट इज द हाईएस्ट पॉसिबल, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि और मैं किसी को 7 लेके जा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहीं पे रिमेनिंग वैल्यूज है। इसको देखो, ये 6 है, ये 1 है, इसको मैं 7 से ऊपर लेके जा ही नहीं सकता है, 7 या 7 से ऊपर, बिकॉज उसमें 6 हम दे ही नहीं पाएंगे ना।
तो ये नहीं हो सकता। इंडोनेशिया में 4 है, यहाँ पे 3 आ सकता है क्या? अभी करंट अगर टोटल देखो तो कितना है? 4 + 3 7 + 1 8 है, तो इसमें मैक्स टू मैक्स आप 2 लेके जा सकते हो, ये 6 हो जाएगा। तो इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम रिपीट हो जाएगी जो उस टाइम पे साउथ कोरिया के लिए था। इंडिया का हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स है और इंडिया 3rd पोजीशन पे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्ट्रडिक्टरी टू द गिवन इंफॉर्मेशन, बिकॉज जिसका भी हाईएस्ट नंबर है वो टॉप 3 में नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स फिर यहाँ पे इसको 3 रख के हम इसको 2 नहीं बना सकते। एंड सिमिलरली अब 3 के साथ अगर मैं इसको 1 रखता हूं, जो दूसरा पॉसिबिलिटी है, 3 के साथ अगर मैंने इसको 1 रखा तो फिर पॉइंट ये है, फिर से जापान के जस्ट नीचे क्या आ जाएगा आपका, ऑन द बेसिस ऑफ द सिल्वर वाला साउथ कोरिया आ जाएगा और उसके नीचे फिर इंडिया आएगा। तो ये भी अलाउड नहीं है, जापान के जस्ट नीचे इंडिया आना चाहिए। दैट मीन्स जापान को मैं यहाँ पे 3 नहीं दे सकता। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, राइट। तो 3 तो मैं नहीं दे सकता। क्या मैं 1 दे सकता हूँ? अगर आप सोचो थोड़ा सा, मैं 1 भी शायद इसमें नहीं दे सकता, बिकॉज अगर इसको 1 दोगे तो इसको भी एटलीस्ट 1 होना पड़ेगा। बट जापान और इंडिया में फिर क्या आ जाएगा, फिर आपका दोनों में 1, तो वो डिसाइड होगा किससे? 3 से, राइट। सो दैट मीन्स 3 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, तो उसके बीच का ही नंबर जाएगा डेफिनेटली फिर यहाँ पे 2। फिर अब ये 2 एक्चुअली में फिक्स्ड है, आई एम प्रीटी श्योर। तो अब 2 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो अब 2 नहीं हो सकता, वही सेम प्रॉब्लम, बिकॉज जापान के जस्ट नीचे आपका इंडिया आना चाहिए, तो यहाँ 2 नहीं हो सकता। ऑब्वियसली ऊपर तो जा ही नहीं सकता, 3 तो ऐसे भी नहीं जा सकता, 2 से नीचे डालना पड़ेगा, 1 कम से कम रहना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस हैज टू बी 1, राइट। सो ये फिक्स हो गया। अब यहाँ से कुछ पोजिशंस में हम फिक्स कर सकते हैं, जैसे इन तीनों में 2 2 2 वाले में सबसे ऊपर कौन आएगा आपका? साउथ कोरिया आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस ब्रॉन्ज बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ऊपर रहेगा, सो दिस विल बी एट द 2nd पोजीशन। देन जापान एंड इंडिया में ऑब्वियसली जापान वुड बी एट द 3rd पोजीशन, इंडिया वुड बी एट द 4th पोजीशन। ये सिचुएशन है। नंबर ऑफ अगर आप मेडल्स देखो तो 3 + 1 + 1 3 4 5, ये कितना हो जाएगा? 5 + 1 6, इसका करंट टोटल इज 4, इसका अभी नहीं पता है, इसका करंट टोटल इज एक्चुअली 6, राइट। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यूज क्या बची? तो 2 + 2 4 और 4 + 2 6 आपका है। तो आपको रिमेनिंग क्या चाहिए? 4 आपको ब्रेक करना है 2 नंबर में। लेकिन अब यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट कंडीशन एक आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो करेंटली आपका 6 आपका हाईएस्ट चल रहा है, राइट। 6 आपका हाईएस्ट ही है। साउथ कोरिया लेकिन क्या है? 2nd पोजीशन पे है। 2nd पोजीशन में आपका 6 के साथ है। दैट मीन्स मुझे पाकिस्तान और इंडोनेशिया में ये जो रिमेनिंग 4 डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि साउथ कोरिया का फिर हाईएस्ट ना रह जाए, बिकॉज जिसका भी हाईएस्ट होगा वो टॉप 3 में नहीं रहेगा। दैट मीन्स मेरे को 4 यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सच दैट मेरा 6 से ऊपर नंबर चला जाए। 6 से ऊपर नंबर मेरे को एटलीस्ट 7 लेके जाना पड़ेगा, तभी साउथ कोरिया का फिर हाईएस्ट नहीं रह जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तभी आपका साउथ कोरिया का हाईएस्ट नहीं रहेगा एंड तभी वो 2nd पोजीशन पे आ सकती है, राइट। सो 6 से ऊपर लेके जाने के लिए एटलीस्ट मैं बोलूँ तो 7 लेके जाना पड़ेगा। तो इट हैज़ टू बी आइदर इंडोनेशिया और पाकिस्तान। अब 7 पे एटलीस्ट अगर जाना है, उससे ऊपर जा सकते हैं, बट नंबर इतना रिमेनिंग नहीं बचा है, चेक करते हैं। तो किसको लेके जा सकते हैं? तो ये 4 के साथ एटलीस्ट मेरे को इसको 1 तो देना ही पड़ेगा। तो ये मेरा, अगर मैंने इसको एटलीस्ट 1 रखा तो ये रिमेनिंग मेरा 3 जाएगा और यही आपका 4 + 3 से 7 बन पाएगा। इसको तो अगर मैं पूरा का पूरा मतलब यहाँ 1 रख के मिनिमम इसको पूरा देता हूँ तब भी ये 4 ही बन पाएगा 3 + 1। तो 7 अगर बनना है तो किसको बनना है? इंडोनेशिया को बनना है। सो पाकिस्तान में 1 दे दिया और इंडोनेशिया में बचा हुआ आपने 3 दे दिया। सो पोजीशन वाइज आपका पाकिस्तान इंडोनेशिया से ऊपर आ जाएगी। सो दिस विल बी एट द 4th पोजीशन, सॉरी 5th पोजीशन, एंड इंडोनेशिया वुड बी एट द 6th पोजीशन। एंड गोल्ड टैली के हिसाब से इंडोनेशिया हैज 7 total medals, not gold tally, medals, and this would be a total of 2 medals, right? So this is the entire set. There is a lot of logic to this. I would say this is a very difficult set. Let me know how this goes for you, right? So let's look at the problems. Now, which country won the maximum number of silver medals? So maximum silver medals is Indonesia.
right? Maximum number of silver medals is Indonesia. Which country stood first in the final standing? So first country कौन सी आ गई आपकी? चाइना आ गई. So this is China. So यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करो, जैसे ये वाला जो चाइना वाला पार्ट था ना, ये हम द एंड तक नहीं सॉल्व करा था, तब भी हमने थोड़ा स्टार्टिंग में कंक्लूड कर लिया था कि चाइना इज एक्चुअली द हाईएस्ट. सो इवन इफ यू सॉल्व दिस पार्शियली, दिस सेट विल गिव यू 1 or 2 प्रॉब्लम्स. देखना पड़ेगा कितने प्रॉब्लम देते हैं, बट येस दिस प्रॉब्लम वाज डेफिनेटली देयर. चाइना वाला पार्ट आधा ही हमने एक्चुअली में सॉल्व किया था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैड डेफिनेटली कंक्लूडेड कि चाइना वुड बी द फर्स्ट वन. उसके बाद ये लास्ट वाला पार्ट तो कॉम्प्लिकेटेड था, बट येस एक क्वेश्चन तो बन सकता है. एंड दैट इज वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड इन कैट ऑल्सो. और बनना बहुत डिफिकल्ट सेट होता है, तो मे बी यू कैन सॉल्व दैट पार्शली एंड यू गो ऑन टू द नेक्स्ट सेट. अल्टीमेटली द होल आइडिया इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. एक ही सेट से 5 प्रॉब्लम्स निकले या 2 सेट से मिला के 5 प्रॉब्लम्स निकले, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, राइट? सो नेवर गेट स्टक इन प्रॉब्लम्स. Okay, which of the following statements is definitely true? You'll have to check for all the statements. No country won more than 6 medals in total. Definitely true. नहीं, गलत है. So ये तो ऐसे भी गलत है, right? The country that won the maximum number of silver medals did not win any gold. Maximum number of silver medals did not win any gold. This is actually true. So this statement is definitely true. बाकी statement check कर लेते हैं. The number of gold medals is the same number of silver medals for exactly 2 countries. So gold and silver exactly 2 के लिए आपका same होना चाहिए. गलत है, इन तीनों के लिए same है, तभी ये गलत भी है. And the country that won the maximum number of bronze medals did not win the maximum number of silver medals. The country that won the maximum number of bronze medals, जिसका 4 है, did not win the maximum number of silver medals. तो ये भी गलत है, ये दोनों एक ही कंट्री है. इंडोनेशिया का ये भी मैक्सिमम है, ब्रॉन्ज भी और सिल्वर भी मैक्सिमम. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, एंड दैट इज वाई आपका बी स्टेटमेंट वॉज डेफिनेटली करेक्ट. देन व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वन बाय एनी कंट्री इन द टूर्नामेंट? मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ मेडल्स, सो आपका क्या हो जाएगा? आपका 7. सो द आंसर टू द फाइनल प्रॉब्लम बिकम्स 7, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेट. मे बी यू विल हैव टू डू दैट अगेन. 1-2 बार करने वाला सेट है डेफिनेटली. एक बार आज करा, मे बी अ वीक डाउन द लाइन, मे बी go through this set again if you feel the difficulty. If you have again any doubts, you can just put that in the comments.